Next, I request to Palak to express her views on the stage. लाशों के ढेर पर महल बनाते देखा है। लाशों के ढेर पर महल बनाते देखा है, मतलब के लिए मजबूरों को सताते देखा है। देश हित का ख्याल ही नहीं जहान में जिनके, देश हित का ख्याल ही नहीं जहान में जिनके, उन्हें भी शहीदों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते देखा है। So good morning everyone and all present here, Honorable Vandile sir, respected Pratik sir and all my dear friends. Today we have gathered here to celebrate the Independence Day. And we know India is an agriculture country. But India is not a developed country. India is a developing country. And India has corruption. Then what is meant by corruption? And what are the causes of corruption? Then corruption is a dishonesty. Corruption is a dishonesty or a criminal offense which is undertaken by a person or an organization which is interested in a position of authority. Then corruption it may involve many activities which includes bribery, influence peddling and embezzlement. And it may also involve practices which are legal in many countries. Then some are the causes of corruption. First of all, greed of money, lack of democracy, low level of politicians and a higher level of market and the political monopolization. What is the corruption in India and what are the causes of corruption in India? The causes of corruption in India include excessive regulation, licensing system, complicated tax and numerous government departments, then lack of the transparent of the laws and processes. Then I ask you one question. What is the freedom? And what is meant by freedom? We all have freedom, but what is meant by freedom? So freedom is defined as the state of the being free, independent and without restriction. Then what is the importance of freedom? Everybody wants to be free, and the importance of freedom means the opportunity to think and decide without any interference. Then then the freedom is important because of it leads to enhanced expressions, to productivity and the original thoughts increase creativity and all high quality of life. ये सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि शिक्षा का महत्व ये नहीं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी कर सको, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य तो लोगों को ज्ञान दान करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सको। और इसीलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का महत्व अच्छी नौकरी करना होगा तब तक इस समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। So education is a very important in our life, and good education will always help us to determine what is the right and what is the wrong for us. And education also help us to develop our personality, and in this competitive world education is the most important thing. So never ignore the importance of education. Then आपको पता है कि हम आज जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, क्या ये हमने बनाई है? तो नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम हमने नहीं बनाई है, ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाई है। जब 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी इंडस्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश करनी थी, तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें बहुत सारे वर्कर्स चाहिए थे, मिलिट्री पावर्स चाहिए थी। तो उन्होंने ये सब इंडिया के लोग इसके लिए और ये एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाई, और ये एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज में थी। सो उन्हें मिलिट्री से उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के लिए और उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ईजी जा रहा था।
तो यही एजुकेशन सिस्टम हम आज भी लेकर चल रहे हैं। आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया कि मिलिट्री पावर, वर्कर्स, इनमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती है, और ब्रिटिशर्स ने उन्हें कहा कि आप बैठो तो वो बैठ जाएंगे, आप गन चलाओ तो वो गन चला लेंगे, और ऐसी स्थिति अब हमारी हो गई है। अगर हम पढ़ाई मतलब हम स्कूल के बुक्स रटते गए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हम वही रटा हुआ पेपर्स में लिखते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो रही है और हम अनक्रिएटिव होते जा रहे हैं। बाद में अगर हम बात करेंगे, आप सबको पता होगा कि महाभारत में कौरव पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, और वो 5 पांडव बचपन में ही द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए गए थे। पर गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें मतलब जो बेसिक था वो 5 भाइयों को सेम ही पढ़ाया था। पर अर्जुन को तीर धनुष चलाना पसंद था, भीम को गदा चलाना पसंद थी, और तीनों भाइयों को अलग अलग शस्त्र चलाना पसंद थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें बेसिक शिक्षा तो सेम दी, पर आगे की जो शिक्षा है वो जैसे कि भीम को गदा में इंटरेस्ट था तो उसे उसी डायरेक्शन में उसे मतलब परफेक्ट बनाया। और अगर गुरु द्रोणाचार्य ने तब कहा होता भीम को कि बेटा तुम गदा नहीं चला सकते, तुम तीर धनुष चलाओ, इससे तुम्हारा फ्यूचर बेटर होगा, अगर तो तब भीम कौरवों के एक भी सिपाही को नहीं मार सकता था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अनक्रिएटिव नहीं बनना है, उसे मतलब किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, उसे क्रिएटिविटी देकर सॉल्व करना है और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल weapon which you can use to change the world, and the education is the one of blessing in our life. So friends, focus here. I tell you one interesting story, and this story belongs to Swami Vivekanand. एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे थे। और क्यों बैठे थे वो पेड़ के नीचे? क्योंकि उन्हें नदी के उस पार जाना था। बाद में स्वामी जी पेड़ के नीचे बैठे थे और तभी वहाँ पर एक तपस्वी आया जो 15 साल के बाद तपस्या करके उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो नदी के पास पानी पीने आ रहा था। तभी उसने स्वामी जी को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा और वो उनके पास गया और उनसे पूछने लगा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ, बोलिए। तो फिर तपस्वी ने कहा, स्वामी जी आप यहाँ पर पेड़ के नीचे धूप में क्यों बैठे? तो फिर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मुझे नदी के उस पार जाना है और मैं नाव का यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर तपस्वी हंसने लगा और बोला, स्वामी जी आप तो इतने महान पुरुष हैं, आपको सारा देश जानता है, फिर आप इतनी छोटी सी नदी पार नहीं कर सकते? फिर नाव वाला आया, मतलब नाव आई, और स्वामी जी ने कहा कि आप भी मेरे साथ नाव में बैठ के नदी के उस पार चलिए। फिर वो दोनों भी नाव में बैठे और नदी के उस पार पहुंच गए। फिर तभी स्वामी जी ने नाव वाले को 1 रुपया दिया, मतलब किस चीज़ का? कि 50 पैसे स्वामी जी के और 50 पैसे उस तपस्वी के। फिर वो नाव वाला चला गया। बाद में स्वामी जी ने तपस्वी को उत्तर दिया कि देखिए आपने 50 पैसे के लिए अपने पूरे 15 साल बर्बाद कर दिए। क्योंकि मतलब इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे जो फ्रीडम मतलब फाइटर्स थे, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, बीबी अम्बेडकर, अगर इन्होंने ऐसे ही वक्त बर्बाद किया होता और वो घर में ही बैठे रहते और वो तपस्या करने चले जाते 20-20 साल, तो हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं हो पाता और हम यहाँ पर मतलब आज़ादी से बैठ के नहीं होते। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और वक्त बहुत ही कीमती होता है। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की, ऊंचाई आसमानों की। जय हिंद, जय भारत।